نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، چھوٹے بڑے بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری بیماری و شفایابی، ہماری موت و زندگی، ہماری امیری اور غلامی، غریبی، ہماری حکومت و غلامی، ہماری عزت و ذلت، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گا. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. ہماری تمام تر عبادت کے قسموں کا مستحق وہی ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، حکیم الامت ہیں، امام اعظم ہیں. ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے ان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہی نبی کی اتباع اور اطاعت ہی پر منحصر ہے. اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ دو پہلو ضرور آتے ہیں، سکھ اور دکھ کے، خوشی اور غم. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے. دونوں صورتوں کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں کہ جب خوشی آئے، جب اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب ہم ابتلا و آزمائش کے شکار ہوں، پریشانیوں سے گھر جائیں، کوئی چیز ہم سے چھن جائے، زندگی تنگ اور اجیرن ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے. دونوں صورتوں کے احکام بتلا دیے کہ اگر خوشحالی آئی، جہاں مومن کی صفات اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، وہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. عجبا لامر المؤمن، مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. یہ چیز صرف مومن کے ہاں پائی جاتی ہے. یہ خاصیت صرف مومن ایمان کا حصہ ہے. دونوں صورتوں میں اس کی بھلائی ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا جو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اگر ہم اچھے دن گزر رہے ہیں، ہمارے اچھے دن ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. پریشانی کے دن ہیں تو صبر کریں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آج کا جو ہمارا خطبہ ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ اگر ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، جس بھی حالت میں اللہ رکھے، اگر ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے تو ہمارا نقصان کیا ہوگا. ہمارا نقصان کیا ہوگا. ناشکری کے نقصان کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہماری زندگی میں، انفرادی زندگی میں، قوموں کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کیا نقصان ہو سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر ہم ناشکری کرتے ہیں یا کوئی ناشکری کرتا ہے. پہلے ناشکری کا مطلب سمجھ لیں. ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، تھوڑی بہت، کسی بھی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، بیٹوں کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. اگر نعمت آدمی نعمت سمجھتا ہے صرف پیسے یا اولاد ہوں یہی نعمت، ایسے نہیں ہے. اللہ کی بے شمار نعمت ہمارے اوپر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے، شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں. انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آج خالی جیب میں پیسے نہ ہو، روڈ پہ بیٹھا ہوا ہو، پھر بھی وہ اگر شکر ادا کرنا چاہے تو اس کے پاس بہت سارے اسباب ہیں. جس کے پاس دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، بولتی ہوئی زبان ہے،
सुनते हुए कान है, धड़कता हुआ दिल है, सोचता हुआ दिमाग है, चलते फिरते हुए काम करते हुए उसके बाजू है, कदम है। ये कम बड़ी नेमत है। जिनके पास सेहत नहीं है उनके पास पैसे पे लेते हुए सुकून नहीं है, चाहे उनके पास बिछौने पैसे क्यों हो, लेकिन अगर सेहतमंद नहीं है तो सारी नेमतें बेकार हैं। परहेजी खाना नहीं खा सकते, उठ के चल फिर नहीं सकते, ऐसे बैंक बैलेंस, ऐसे हवेली का क्या फायदा कि आदमी 2 घूंट पानी पीने के लिए भी दूसरे हाथों का मोहताज हो। आंख अल्लाह ने बिनाई ले ली, आंखों से महरूम हो गया, बहरा हो गया, गूंगा है, लूला है, लंगड़ा है, फालिज मार दिया, या किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया, शुगर जैसी बीमारी का शिकार हो गया कि बहुत सारी नेमतें उसके लिए सामने रखी हुई लेकिन हाथ नहीं लगा सकता है। तो अगर इंसान सब कुछ खाली है लेकिन अगर सेहतमंद जिस्म भी है ना, तो भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। नाशुक्री कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों पर खुश ना रहना, जबान से उसका इजहार ना करना, दिल उसमें मुतमईन ना हो, आज़ा जवारे अल्लाह की नाफरमानी में लग जाए, यह नाशुक्री है। कि मुनीम से जो हमारा मुनीम हकीकी है अल्लाह तबारक व तआला, उससे हम बेवजह नाराज हो जाएं, बदगुमानी पैदा कर लें, जरा सी मुसीबत की हमारी जिंदगी में बदगुमानी पैदा कर लें, नाचुक्री है कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा मामला क्यों किया। उससे मोहब्बत ना करना, अल्लाह की जात से, जबान और दिल से, जबान से इजहार ना करना कि अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, ना करना ही नाशुक्री है। जिस हाल में भी अल्लाह रखे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जबान से भी, दिल भी उसमें मुतमईन हो, आज़ा जवारे भी अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी में लगे रहे, ये शुक्री है। ऐसा ना करना नाशुक्री है। जो नाशुक्री करते हैं हम और आप, कोई भी, अल्लाह जिस हाल में भी रखे, अगर नाशुक्री करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है थोड़ा बहुत, हम ज्यादा की वजह से कि हमारे पास इतना नहीं है उस वजह से हम नाशुक्री कर रहे हैं, जो है वो भी चला जाएगा। अगर शुक्रगुजारी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि जहां तक हमारी नजर हो, काश कि हम इनके बराबर हो जाते, काश कि इनसे आगे हो जाते, हो सकता है शुक्रगुजारी की वजह से वहां तक पहुंच जाए। लेकिन अगर वो दिल ही दिल में हम कहते रहे अपने उस मुसलमान भाई से या अल्लाह की जात के ताल्लुक से हम बदगुमानी पैदा करते रहे कि ये शराबी कबाबी है, बेगुनाह है, हराम गुनहगार है, हराम हलाल की तमीज नहीं करता, लेकिन इसके पास दौलत की रेल पेल है, हम तौहीद वाले हैं, नमाजी हैं, हमने किसी का कुछ न बिगाड़ा, लेकिन हमारे देखिए हमारे हाथ तंग हो रहे हैं, बच्चों और बीवी की किफालत मुश्किल हो रही है। अगर ये दिल में बात आ जाती है तो जो है हमारे पास वो भी अल्लाह तबारक व तआला या तो कम कर देगा या छीन लेगा। अल्लाह ने खुद ही कहा, वह तअज़्ज़न रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया है, ये बता दिया लोगों को, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, जबान से कहा अल्लाह का शुक्र है, अगर दिल से, राज़ और जवारे से शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं और बढ़ा दूंगा उस नेमत को जिस पर तुम शुक्र अदा करते हो, और उस नेमत को बढ़ा दूंगा। और अगर वला इन कफरतुम, अगर नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो जान लो कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। वो अजाब किसी भी शक्ल में आ सकती है, वो नेमत जो हमारे पास है चाहे छिन जाए या अल्लाह तबारक व तआला उसकी जगह पे मुसीबत में डाल दे हमें, या उसको कम कर दे, किसी भी शक्ल में आ सकती है। जो शुक्र करने वाले बहाने ढूंढते हैं शुक्रगुजारी के, और नाशुक्री करने वाले भी उनके पास हजार बहाने होते हैं नाशुक्री के, रोते रहते हैं हमेशा, कितना भी अल्लाह देते लेकिन रोते रहते हैं। कभी भी उनकी जबान से आप ये नहीं सुनेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। एक हकीकी वाकया है बहुत बड़े आलिम का, जो उस वक्त वो मक्के में किसी यूनिवर्सिटी में वो एक गए हुए थे, प्रोग्राम में शरीक थे, और वो वहां पे वो कुछ खिताब कर रहे थे, वो बैठे हुए थे स्टेज पे, उनका बेटा बाइक लेकर के चला गया बाहर कहीं घूमने के लिए, और अभी वो स्टेज पे बैठे थे, इतने में खबर आई कि आपका एक बेटा एक्सीडेंट में चला गया है और दूसरा आईसीयू में है। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने ताज्जुब किया, जब उस सालिम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो उन्होंने ताज्जुब किया लोगों ने कि आप कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, मतलब एक बेटा आपका ऑन द स्पॉट चला गया, एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में, आप कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र करें। हाँ, उसके साथ दूसरा बेटा भी तो था, वो बच गया। तो कह अगर वो भी चला जाता तो करे फिर भी अल्लाह का शुक्र, करे फिर किस बात की, करे मुझे बचा लिया, मैं उनके साथ लेता, मेरी भी जान जा सकती थी, मैं तो बचा, उसमें अल्लाह का शुक्र है। एक दूसरा बेटा बचा, उसमें तो अल्लाह का शुक्र है। और भी हमारी फैमिली पे से ये मुसीबत आ सकती थी, हो सकता हम सारे लोग किसी कार में जा रहे तो सारे के सारे पे एक्सीडेंट हो सकता था। तो अभी तो कुछ बस ये एक बेटे को ये चीज आई है ना, हो सकता है ये एक्सीडेंट पूरे फैमिली के साथ एक साथ हो सकता था, हम सब एक साथ हिलाक हो सकते थे, हम बच गए, मेरा बेटा बच गया, दीगर फैमिली मेंबरान बचे हुए हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र है। तो इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी शुक्र अदा करने वाले बहाने ढूंढते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो और इजाफा कर देंगे। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। वो अजाब किसी भी शक्ल में आ सकती है। जैसे एक शक्ल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वो दी हुई नेमत छीन ले, उसकी मिसाल खुद अल्लाह ने कुरान में बयान की। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हाल्लाहु लिबासल जु'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान करता है जो बहुत सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वो कौम, वो बस्ती कानत आमिनतन मुतमइन्ना, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर सुबह रोजी उसके पास खींची खींची चली आ रही थी। रोजी दो तरह से होती है, एक होता है कि हम खुद रोजी तक पहुंचे, ये मुश्किल थोड़ा काम है, तो ये अल्लाह का शुक्र है रोजी मिल रही है। एक होता है रोजी हम तक पहुंचे, कहीं जा ही नहीं रहे, घर बैठे हुए हैं, बीवी बच्चे में अपने हैं, रोजी आ रही है, बाल बच्चों में मगन है, अल्लाह तबारक व तआला की रोजी आ रही है, खींची खींचे लोग चले आ रहे हैं, चाहे घर के पास दुकान किए हुए हो या कोई कारोबार कर रहे हो अपने घर पे रहते हुए, ऑनलाइन कारोबार या कोई भी कारोबार, रोजी चली आ रही है। एक होता है कि लोग जा करके घर से निकलते हैं सुबह सुबह, जैसे लोग कारखानों में काम करते हैं, दोपहर तक लंच लेकर के निकलते हैं, खाना लेकर के रात को घर पे आते हैं। हम परदेसी लोग जैसे हैं, बीवी बच्चों से दूर रह करके परदेश में पड़े रहते हैं, खुद रोजी तक चल करके आए हैं, तो ये दूसरा तरीका मुश्किल है। लेकिन उनके पास आसान वाला तरीका था, बस्ती से निकल के जाना भी नहीं है, बीवी बच्चों में रह करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, बहुत बड़ा इनाम था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर दिन रोजी खींची खींची चली आती थी, उनको भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ, ऐश में मगन हो गए वो लोग अल्लाह की नाशुक्री की। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की इन नेमतों की नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हाल्लाहु लिबासल जु'i वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन, इनकी इस करतूतों की वजह से, इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खुशहाली को परेशानी में बदल दिया, भूख और खौफ से दो चार कर दिया। फ़अज़ाक़हाल्लाहु लिबासल जु'i वल ख़ौफ़, भूखमरी का शिकार बना दिया, उनके ऊपर दुश्मन का खौफ मुसल्लत कर दिया। हम छोटी चीज समझते हैं नाशुक्री को, जो हमारे पास है, खुश नहीं है, उसको छोटी चीज समझते हैं, कितनी बड़ी सजा मिल रही है। लिबासल जु'i वल ख़ौफ़, खौफ उनको मुसल्लत कर दिया हमने। ऐसी कई बस्तियां हैं, दुश्मन का खौफ और भूखमरी आम कर दी हमने उनमें। जब इंसान के ऊपर खौफ तारी होता है, चाहे जैसा खौफ हो, तो वो उस सुकून गारत हो जाता है उसका। और अगर दुश्मन का खौफ हो तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती है, जरा से कोई टेंशन हो जाए करवटें बदलता रहता है वो। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन का खौफ उनके ऐसे लोगों के दिलों पर भर देता है। आज खुद देख लीजिए, जब तक इस आयत से ये पता चला कि जब तक जिस बस्ती वाले, जिस घर वाले, जिस कबीले वाले अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, जब तक खुशहाल लेते हैं, वो नेमत जारी रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बाकी रखता है। खुशहाली उस कौम में, उस समाज में रहती, आम रहती है, वहां के लोग खुशहाल होते हैं। लेकिन जब नाशुक्री हो जाए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हाल में उन्हें रखा है, अगर उसमें खुश ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस नेमत से महरूम कर देता है। वो कौम या बस्ती भुखमरी की शिकार हो जाती है, उस पर दुश्मन का खौफ मुसल्लत कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। देख रहे हैं पूरी दुनिया में आप, बहुतों की हमारी माशी हालत कैसी है। बहुत सारे आजाद मुस्लिम ममालिक जिनको आप खुद देख रहे हैं, उनके ऊपर दुश्मन का खौफ ऐसा मुसल्लत है कि आजाद होते हुए भी वो अपने बड़े फैसले लेने पर खुद मुख्तार नहीं है। वो दुश्मन उन दुश्मन मुल्कों की तरफ हमेशा नजरें उठा के देखते हैं जो खुद उनको मिटाना चाहते हो दुश्मन। ये वो है जो नाशुक्री के नुकसानात में बड़ी वजह ये है नाशुक्री, कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन का खौफ दिलों में भर देता है, दुश्मन का खौफ, फिर वो अगर मगर करके अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते रहते हैं। एक और वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया मुल्क यमन का, सबा के नाम से उसका कौम सबा के नाम से जिक्र है। मुल्क यमन ही में वो कौम बस्ती थी। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल, मुल्क सबा वालों में निशानी है लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जो लोगों के आसपास थे, अरबों लोग जानते थे, अरब वाले। ये मुल्क सबा में जो सैलाब आया था, जिसका इस आयत में जिक्र है, वो अरबों में मशहूर ज़्यादा दिन हुए भी नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खुद यमन मुल्क सबा में या कौम सबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की निशानी मौजूद है। उनके यहाँ बागात थे दोनों तरफ, यमीन व शिमाल, दो बागात दाएं तरफ, दो बागात बाएं तरफ थे, और बड़ी खुशहाली से इनकी जिंदगी गुजर रही थी, और खेतियां भी बहुत सरसब्ज और शादाब थी। लेकिन इन्होंने भी वही किया, अल्लाह की नाशुक्री की। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम उन दोनों बागों को ऐसे बागों से बदल दिए, अज़ाब फारसलना अलैहिम सैलल आरिम,
اللہ तबारक तआला ने कहा हमने उन पर जोर बहुत जबरदस्त सैलाब भेजा और उन दोनों बागों को ऐसे बागों से बदल दिया जो पहले फल फ्रूट वाले थे, अच्छे अच्छे बागात थे, अब ऐसे बागात हो गए वो खेतियों के खेत जो सरसब्ज़ व शादाब थी उसमें सैलाब का पानी भर गया और जब पानी सूखा तो वो खेती के लायक न बची और वो बागात सब तबाह हो गए। अल्लाह तबारक ने इतना बड़ा तूफान भेजा पानी का, सैलाब का। अल्लाह तबारक ने कहा झाऊ के, पीलू के, खोहर के दरख्त उगे भी तो खाने की चीज अगर कुछ रह भी गई तो बैरी का पेड़, बस यही। और ये तमाम चीजें कहने के बाद अल्लाह तबारक ने कहा ज़ालिका जज़यनाहुम बिमा कफरू, ये उनकी नाशुक्री का हमने उनको सजा सुनाई है। और सिर्फ उन्हीं के लिए खास नहीं है, यमन वालों के लिए, सबा वालों के लिए खास नहीं है। वहल नुजाज़ि इल्लल कफूर, जो भी नाशुक्रे होंगे क़यामत तक आने वाले सबको इसी तरह से दो चार करूंगा, दी हुई नेमत छीन लूंगा, उसे मुसीबत में बदल दूंगा, कम कर दूंगा। ये सारी चीजें नाशुक्री की वजह से होंगे। कौमे सबक वो क्या समझते हैं, उसका जिक्र कई सूरतों में हुआ, अलग से उसकी सूरत ही है। अपने वक्त की सबसे मजबूत, सबसे खुशहाल कौन थी पूरी दुनिया में, सुपर पावर कौन थी? ये पहाड़ियां हैं दोनों तरफ और उसने बड़े बड़े बांध बना करके पानी को रोक रखे थे, बागात लगा रखे थे, नहरें जारी कर रखे थे उन बड़े बड़े बांधों से। बड़े खुशहाल कौम थी, खेतियां सरसब्ज़ शादाब थी, बागात ले आते थे, फल खूब ज्यादा होते थे। ऐसा आदमी खड़ा होता था पहाड़े पर जैसे लगता था दुनियावी जन्नत में है, वो दुनियावी जन्नत है, इतना सरसब्ज़ शादाब वो इलाका था, खुशहाल कौम थी। लेकिन जब वो नाशुक्री की तो ऐसा तूफान, ऐसा सैलाब अल्लाह ने भेजा कि वो सैलाब सिर्फ यमन तक नहीं था, वो पानी पूरे अरब को अपने चपेट में ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब उस मुतवल्ली थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक के कुछ वक्त पहले के वाक़या है जब सैलाब आया था मुल्क यमन में। वो पानी यहाँ मक्के तक आया था, कई महीने खाने काबा की दीवारें भी उसी में डूबी हुई थी, सैलाब में जो यमन में आया हुआ था, और उसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई थी। फिर उन्होंने दोबारा तोड़ करके बनवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक से चंद दिन पहले की बात है, बनवाया तो अल्लाह के रसूल के जमाने में, अल्लाह के रसूल नबी नहीं थे उस वक्त बनवाया, लेकिन सैलाब कुछ ही दिन पहले की बात है ये। तो इतना बड़ा तूफान अल्लाह तबारक व तआला ने महज इस वजह से उस खुशहाल कौम पे भेज दिया कि वो नाशुक्री करती थी। तो जो भी कौम नाशुक्री करेगी, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को छोड़कर, दी हुई नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करेगी, उसका गुण नहीं गाएगी और मज़ारों और दरगाहों और दीगर जगहों पर जाकर के दिल लगाएगी, मुन्ने में हकीकी से रिश्ता तोड़ लेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौमों को इसी तरह दलील करेगा कि उनकी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला छीन लेगा नेमतें अल्लाह तबारक व तआला। और एक नुकसान और, जो लोग नाशुक्री करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से और उसकी तस्बीह और तहमीद से महरूम हो जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफर दिया गया कि आपको हम ये पूरा पहाड़ वादिया पता सोने का बना देते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। दोनों सूरतों को आपने पसंद किया और उसकी वजह बतलाई। अल्लाह के रसूल ने कहा रज़ा अलैहि रब्बी लिया जलाली बतहा मक्का तज़हबा, मेरे रब ने पेशकश की मेरे लिए कि ये पूरे मक्का की वादी बतहा मेरे लिए सोने में बदल दी जाए, पूरे सोने बदल करके मेरी मिल्कियत हो जाए। कुल तो ला या रब्बी, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ऐ रब नहीं, ऐ मेरे रब ऐसा नहीं, नसी कह दी से नसी। कुल तो या ला या रब्बी, मैंने कहा ऐ रब नहीं, मैं नहीं चाहता या फा वलाकिन अशबहु यौमन व अजूअ यौमन, मैं चाहता हूं एक दिन भूखा रहूं और एक दिन शिकमशेर रहूं। फइज़ा जुअतु तज़र्रअतु इलैका व ज़करतुका, जब मैं भूखा रहूंगा गिड़गिड़ा करके तेरी तरफ रुजू करूंगा और तुझे याद करूंगा। वइज़ा शबीतु शकरतुका व हमिदतुका, और जिस दिन शिकमशेर रहूंगा, जिस दिन पेट भरा रहेगा, उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, तुझे याद करूंगा, तेरी तारीफ करूंगा, तेरे गुण गाऊंगा। अगर आदमी नाशुक्रा होता है तो इन चीजों से महरूम होता है। नबी से अफजल कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र की फजीलत को पाने के लिए ये पूरी वादी जो सोने के आपके लिए बदल देने का ऑफर आ गया था, वो आपने ठुकरा दी। शुक्र के फायदे से महरूम हो जाते आप। हम महरूम हैं अगर हम नाशुक्री करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन खाते हैं, कौन है हम में से जिसके यहाँ हर दूसरे दिन फाका होता है? अल्लाह के रसूल ने खाई नहीं कि मैं एक दिन खाऊं दूसरे दिन फाके से रहूं। अफजलियत की बुनियाद ये दौलत पे नहीं है। अल्लाह के रसूल से अफजल कोई नहीं, लेकिन आपकी खाई देखिए कि एक दिन भूखा रहूं, एक दिन शुक्र के, एक दिन भूखा रहूं, एक दिन पेट भर के खाऊं। और अगर कोई नाशुक्री करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नाशुक्री की वजह से जन्नत में एक घर जो शुक्र का घर बनाया जाता है ऐसे लोगों के लिए, उससे वो महरूम कर देता है अल्लाह तआला उसको। ये भी सुनन नसई कह दी, सुनन तिरमिज़ी कह दी से अबू मूसा अशअरी हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है जो रूह कब्ज करते हैं, तूने मेरे बंदे के बेटे को छीन लिया। हालांकि अल्लाह के मतलब हुक्म से ऐसा होता है, तूने मेरे बंदे के चहेते बेटे जिगर गोशे को छीन लिया,
ले लिया, रुकब कर लिया, हाँ अल्लाह अल्लाह। तो क्या कहा, उसका रिएक्शन क्या रहा, रद्द अमल क्या रहा, मेरे उस बंदे का रद्द अमल क्या रहा? जब उसका चहेता, उसका जिगर गोशा जब उसे छीना गया, तो तुम बताओ उसका रद्द अमल क्या रहा? अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लामुल गुयूब है, वो मुकम्मल ही उसके पास, लेकिन फिर भी वो फरिश्तों से पूछता, मालूम है अल्लाह क्या रहा रिएक्शन, रद्द अमल क्या रहा? तो कहा कि उसने तेरा शुक्र अदा किया, तेरा शुक्र अदा किया, बच्चे की रूह कब, बच्चे की वफात पर तेरा शुक्र अदा किया, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कहा ठीक है, उसके लिए जन्नत में घर बना दो और उसे उसमें शुक्राने का घर लिख दो, शुक्राने का घर उसमें लिख दो, उस बंदे के लिए घर खास कर दो, शुक्राने का घर। हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, अगर हम उस पर नाशुक्री किए और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं की कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ तो अल्लाह का था, अल्लाह ने जो लिया भी अल्लाह का, अभी तो बचा हुआ मेरे पास, अभी तो अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ नहीं लिया, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, नाशुक्री करते हैं, वो जन्नत के इस घर से महरूम हो जाते हैं, जो शुक्राने का घर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने शुक्रगुजार बंदों के लिए रखा हुआ है। इसी तरह से जन्नत में जो नाशुक्री करते हैं, यहां तक कि चाहे वो अपने किसी इंसान ही की नाशुक्री करें, जैसे बीवियों के बारे में आता है, वो अपने शौहरों की नाशुक्री करते, शौहरों की नाशुक्री भी एक तरह से अल्लाह की नाशुक्री है। भाई शौहर उनका कफील है, जिस हाल में मेरे को उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इसे मुझे इसके मातहत बनाया है, और इसने जैसे भी जिंदगी अल्लाह ही के जैसे भी जिंदगी हमारी चले, अल्लाह का शुक्र है, उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन शौहरों की नाशुक्री को भी नाशुक्री कहा गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं क्या बात है तुम्हें देखता हूं, जानने में अक्सरियत तुम्हारी है। उसके बाद दो वजह बताई, तकसुरन लान और तकफुरन अशीर, कि तुम लानतान बहुत करती हो, और यह है कि शौहरों की नाशुक्री करती हो, जिस वो तुम्हें कुछ भी ला के दे तो तुम उस पर शुक्रगुजार नहीं बनते, हमेशा खिलाता पिलाता रहे तुम्हारे मन के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, और मुतालबे पूरे करते रहे, एक बार अभी कभी मुतालबा ना पूरा कर पाया, मिजाज के मुताबिक कोई बात ना हुई तो उसकी के कराए पे पानी फेर देती हो, अब कहती हो जब से तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे घर में आई हूं, कभी मैंने शुक्र ना देखा। ये हदीस का अल्फाज है, ये हदीस का अल्फाज अल्लाह के रसूल ने कहा तुम यही कह देती हो। तो ये नाशुक्री अक्सर लोगों को जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। इस वजह से हमें जिस हाल में भी रखा गया है, जैसे भी है, इतनी बड़ी तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी शुक्रगुजारी के लिए, ताकि नाशुक्री से बचे रहे, कि अगर हम वो अपना लें, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम ला तज़दरू इला मन हुआ फौक़कुम फवतज़दरू अल्ला तज़दरू फवतज़दरू फवअज़दरू अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि तुम अपने से हमेशा नीचे देखा करो। ये जो नाशुक्री से बचना है अगर, तो हमेशा अपने से नीचे देखो, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, तुम्हारे नीचे है उनको देखो, वला तंजुरू इला मन हुआ फौक़कुम, अपने से ऊपर देखो ही मत। ये सबसे बेहतर तरीका है, फवअज़दरू अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, सबसे बेहतर तरीका है कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करोगे। हजारों तबके इंसान होते हैं जिंदगी के, ये सिर्फ बड़े बड़े कह दिए गए हैं ना कि अपर कास्ट है, मिडिल कास्ट है, लोअर कास्ट है, इनके अंदर भी सैकड़ों तबके हैं, आप देखेंगे तो हजारों तबके। हर इंसान देखेगा, गौर करेगा तो कोई ना कोई उससे नीचे मिल जाएगा, वो खुद महसूस करेगा कि मैं अभी सैकड़ों से बेहतर हूं, मैं अभी हजारों से बेहतर हूं। लेकिन शर्त यह है कि अपने से नीचे देखे। उसके पास अगर एक घर है तो वो देखे ऐसे लोगों के पास जिसके पास घर ही नहीं है, किराएदार है तो ये देखे कि कुछ लोगों के पास किराए पे रहने की भी जगह नहीं, वो सड़कों पे बैठे रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, या फिर ये है जो मेन रैन बसेरा बना होता है उसमें जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज आप नीचे देखे 10,000 की आमदनी 5,000 वाले को देखे, 5,000 वाला देखे, कुछ लोग ऐसे जो 1,000 भी मुश्किल से नहीं कमा पाते, कोई वसीला ही नहीं बन पाता है। तो अपने से ऊपर देखेंगे तो नाशुक्री आएगी दिल में, शुक्रगुजारी का जज्बा कम होगा, फिर वो तकाबुल का, मुकाबले का, कंपटीशन की बात दिल में आएगी, किस तरह से हम इसके साथ दें, इसको पीछे करें, इससे आगे बढ़ जाएं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी, नाशुक्री दिल में बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश, ऊपर देखते चले गए, नीचे देखना चाहिए, हुक्म है नीचे देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, कमाओ, दुनिया कमाओ, उस्मानी गनी बन जाओ कमाते कमाते, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा अपने से नीचे देखेंगे तो शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा, हमेशा शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा। सैकड़ों लोग आपको दिन भर में सुबह से शाम तक मिल जाएंगे जो जिनसे आप बेहतर होंगे, जिस्मानी एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, आमदनी और खान पान रहन सहन के हिसाब से भी। लेकिन शर्त यही कि आप गौर करें, अपने से नीचे लोगों को देखें, फिर अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नाशुक्री पैदा होगी दिल में, और नाशुक्री का नुकसान आपने सुन लिया कि या तो वो नेमत जो हमारे पास है या अल्लाह तबारक व तआला छीन लेगा, या फिर वो जो है उसको और कम कर देगा, या फिर ये छीनने के साथ साथ मुसीबत भी आएगी हमारे ऊपर।
بدل دے گا, مصیبتوں میں بدل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے, اللہ کے شکر اور تعریف سے ہم محتاج ہو جائیں گے. جنت میں جو شکر کرنے والے لوگوں کے لیے گھر بنایا جاتا ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. یہ تو 3-4 بڑے بڑے نقصان ہیں, اور اگر غور کریں گے, زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی بہت سارے نقصان اس میں نکل آئیں گے, اور کتنے نقصان ہو سکتے ہیں. جتنی باتیں بتائی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اور تمام لوگوں کو اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بار الہ کو ہمیں جس حال میں بھی رکھے, ہم اسے آزمائی سمجھ کے یا پھر یہ ہے اپنے کسی غلطی کی سزا سمجھ کر ہم اس پہ صبر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور ہر حال میں خوش رہے, زبان سے تعریف کریں. کوئی کچھ بھی پوچھے, کتنی بھی پریشانی ہو, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. دل مطمئن ہو, اللہ سے محبت کم نہ ہونے پائے, اور زعزع و دوارے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بڑی مصیبت ہو تو اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہو جائے, غم کے اتنے دباؤ میں آ جائیں کہ ہم اللہ سے دوری بنا لیں, نماز سے دوری بنا لیں, اپنے منعم حقیقی سے رشتہ اپنا کمزور کر لیں. ایسا کبھی نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں زبان سے, دل سے اور اعضاء و جوارح سے تو اپنا شکریہ بجا لانے کے ہم تمام لوگوں کو توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.